ان کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کے 5 ارکان، ایمان کے 6 ارکان اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ ایمان کے 6 ارکان میں ایک اہم رکن رکین انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہے۔ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا بھی داخل ہے۔ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اسوہ اور نمونہ بنانے کا حکم دیا، لیکن ابو الانبیاء امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ سالانہ طور پر حج کے موقع پر ہو، قربانی کی عبادت ہو، یا مسلمانوں کے گھر لڑکوں کی ولادت ہو، یا پھر روزانہ کی نمازیں ہوں، فرض نمازیں ہوں، مسنون نمازیں ہوں، ان نمازوں میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں پابندی کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ اور نمونہ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اللہ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل بنایا، ویسے ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل بنایا۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کو بہت سارے تربیت کے سبق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں کئی صفات کے ذریعے تذکرہ کیا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی تنہا مؤمن تھے، یا خیر کے کاموں میں ایک امت جتنے کام کر سکتی ہے وہ تنہا ایک شخصیت اتنے کام کرنے والے، یا پھر امت امام کے معنی میں رہنمائی کرنے والے، پیروی کرنے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار و فرما بردار اور تابعدار تھے ابراہیم علیہ السلام۔ مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، شرک سے لا تعلق اور بیزار تھے، اللہ کی توحید کی طرف مائل ہونے والے، ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اگلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام امن و سلامتی کو چاہنے والے، امن و سلامتی کو فروغ دینے والے، امن و سلامتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر کام انجام دیتے، دین کی بڑی خدمات انجام دیتے، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر ان کے ذریعے کرائی، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور تواضع کا یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو نے جس رب نے نیکی کرنے کی توفیق دی، اس رب سے نیکی کی قبولیت کی دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم رکھنے والے تھے،
शिर्क से पाकीज़ा दिल और फिर बुग़्ज़ व अदावत से, नफ़रत व कराहत से, कीना कपट से दूर रहने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े सख़ी भी थे। जब उनके पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक भुना हुआ बछड़ा उनके सामने पेश किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद को आम करने के लिए बड़ी जुर्अतमंदी और जसारत का इजहार किया करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगली सिफत अल्लाह ने बयान की, वो मुकम्मल तौर पर वफा शिआर थे। अल्लाह के अहद पैमान को पूरा करना हो या बंदों से किए गए मुआहदों को पूरा करना हो, हर लिहाज से अल्लाह के हुकूक को, बंदों के हुकूक को पूरा करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अगली सिफत अल्लाह ने बयान की कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बे इंतहा सब्र व ज़ब्त करने वाले थे। क़ुव्वत बर्दाश्त अल्लाह ने अता की थी, तहम्मुल का उनके अंदर मादा था। अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले, खुशू व खुजू इख्तियार करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सिफत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को अल्लाह की तौहीद समझाने वाले, उनके दीन व ईमान की फ़िक्र करने वाले, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अल्लाह से दुआएं करते, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। अक़ायद व ईमानियात की भी फ़िक्र करनी है, इबादात की भी फ़िक्र करनी है, दीनी और ईमानी तरबियत करनी है, अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि खैर के कामों में घर के ज़िम्मेदार को अफराद ख़ानदान का ताआवुन हासिल होना चाहिए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने ताआवुन नहीं किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बच्चों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दीन की खिदमत करने में हर मुमकिन ताआवुन पेश किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी ये पैगाम देती है कि मुसलमान को एक शुऊरी जिंदगी गुजारनी चाहिए, लाशऊरी जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हालात पर नजर रखनी चाहिए, लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए, अल्लाह की तौहीद को समझाने, अल्लाह के दीन को पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी ये पैगाम देती है कि जैसे हम अपने खूनी रिश्तों को अहमियत देते हैं, ससुराली रिश्तों को अहमियत देते हैं, तिजारती रिश्तों को अहमियत देते हैं, वैसे दीनी और ईमानी रिश्तों को भी अहमियत दें। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाप के अल्फाज इस्तेमाल किए, अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मुमिनीन करार दिया, अहले ईमान को आपस में भाई भाई बताया। ये तमाम ईमानी रिश्तों को अहमियत देने के लिए है। अगर खूनी रिश्ता भी हो लेकिन दीनो ईमान से महरूम हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अहमियत नहीं दी, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का मामला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि कभी शिर्क और कुफ्र से गाफिल नहीं रहना चाहिए, हमेशा तौहीद व ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं की, ऐ अल्लाह तू मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा ले। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी दीन पर अमल करने, दीन की खिदमत करने, दीन की नश्र व इशाअत करने के लिए कुर्बानियों और आजमाइशों से भरी पड़ी थी। वालिद को अल्लाह की तौहीद समझाया, वालिद घर से बेघर करने का इरादा किया, जान से मारने की धमकी दी, कौम के पास आए, हिम्मत नहीं हारी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को भी अल्लाह की दावत दी, दीन की तरफ बुलाया, हक की दावत दी, कौम ने भी जलाकर राख करने के मंसूबे किए। और फिर मुफस्सिरीन ने कहा कि उस कौम की औरत का ये आलम था कि जब वो बीमार होती मन्नत मानती कि अगर मुझे शिफा मिले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करेगी, पेश करेगी। औरतों में इतनी शिद्दत की अदावत थी तो मर्दों का क्या आलम रहा होगा। मुफस्सिरीन ने कहा कि इतनी खतरनाक आग जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए
लगाई गई थी। इससे पहले दुनिया ने उतनी खतरनाक आग का नज़ारा नहीं किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम साबित कदम रहते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, ऐ अल्लाह तू आसमान में तन्हा मुस्तहिक़ इबादत है, मैं तन्हा ज़मीन पर तेरा इबादत गुजार हूँ। और कहते हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज और मददगार है। ये तमाम पैगामात इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बीवी बच्चे को छोड़कर चले जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात मानी, बीवी बच्चे ने भी ताआवुन किया। और फिर अगली कुर्बानी उम्र दराजी में अल्लाह ने औलाद की नेमत से माला माल किया और फिर उन्हें कुर्बान करने का हुक्म दिया। दोनों भी राजी हो जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी तमाम की तमाम जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। लिहाजा हम तमाम को चाहिए कि सिर्फ हम जानवर ज़ुबाह न करें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उम्मत को जो पैगाम देती है, जो तरबियती सबक सिखाती है, जो तरबियती दुरूस हमको देती हैं, वो तमाम के तमाम हम याद रखें और इस मौके से अपनी ज़िंदगियों में अच्छी और बेहतर तब्दीली लाने की कोशिश करें। इस्लामी तक़वीम के एतबार से ये महीना आखिरी महीना है और आइंदा महीना नया महीना शुमार होता है। नीयतों को अच्छी रखनी चाहिए और अच्छे मंसूबे बनाने चाहिए और अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हमने क्या किया और क्या नहीं कर सके और हमको क्या करना चाहिए। ये तमाम बातें, इन तमाम बातों का ख्याल रखना ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, इलाहल आलमीन अरहमर राहिमीन खैरल गाफिरीन, हम तेरे बंदे हैं, तेरे दर के सवाली हैं, तेरे सामने हाथ फैलाने वाले हैं, तेरी जानिब उठने वाले इन बेबस और बेकस हाथों की लाज रख ले। यकीनन हम गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं। हमने बड़े बड़े गुनाह किए, हमने छोटे गुनाह किए, हमने खुलकर गुनाह किया, हमने छुप कर गुनाह किया, लेकिन तेरी रहमत और तेरी मग़फ़िरत हमारे गुनाहों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुज़िश्ता अफराद की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनकी कब्रों को कुशादा कर दे, उन्हें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन खैरल गाफिरीन, रिश्ते नातों में महब्बत व उल्फत अता फरमा, तिजारत व मुलाजमत में बरकत अता फरमा, अहलो अयाल को आँखों की ठंडक और सदक़े जारिया बना, दीनो ईमान की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा, बेकसूर जंगज़दा मुसलमानों की अफराद की हिफाजत फरमा। इस ईदगाह का इंतज़ाम करने वाले, रातों में जाग कर आराम की कुर्बानी देने वाले, अपना माल खर्च करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला तू इन्हें अज्र अजीम से माला माल फरमा। इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन खैरल गाफिरीन, इबादतों की तौफीक दे और इबादतों को कबूल फरमा, मुल्क के अमन व अमान को बरकरार रख। इलाहुल आलमीन अरहमर राहिमीन खैरल गाफिरीन, दुनिया और आखिरत की हर आजमाइश से बचा ले, दुनिया और आखिरत की हर नेमत से माला माल फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह
وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.